subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. We are learning about present indefinite. We already know that we are talking about our daily routine. The main purpose of present indefinite is to talk about routine activities. In routine activities, now you must be capable of speaking your own daily routine, your self daily routine, and you are able to capable of speaking any third person daily routine, as you spoke about Roshni, and you can speak about any person, third person daily routine. So if I ask you the difference between your daily routine and third person daily routine, if you say कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और फ्रेश होता हूँ, you would say I get up, I get up at 6 o'clock in the morning and get fresh, or like freshen up, whatever you say, get fresh. But if you talk about like Mohan सुबह 6 बजे उठता है, then how would you say? Mohan get up or gets up? You have to say gets up, Mohan gets up at 6 o'clock. 6 o'clock in the morning and get fresh or gets fresh? What do you think? Gets You fresh. can say gets fresh. So this is the difference between your own daily routine and any third person daily routine, that you have to put SES, and I think this is totally done by all of you. You already know. Now we are going to talk about the questions and answers. It means you have to have a conversation. So conversation in present indefinite. So first we have already learnt about positive sentences. In positive sentence we have two structures like subject, verb first form and object. Put your audio off so that everybody can hear. If you say यार मैं रोज बाजार जाता हूँ, then you would say I go to market daily. So you already know about this structure, that if your subject is I, we, you, they, plural, you always put this structure. But if your subject is third person like he, she, it, any third person name, then your structure is subject, verb plus either s or es, then object. If you say कि मेरी माँ रोज बाजार जाती है, then you would say my mother goes to market daily. This is the positive sentence structure. Now we have to know about negative also. Somebody's audio seems to be on. Ajay, put your audio up, buddy. Okay, sir. Coming to this, let this lecture be done. We are talking about negative sentence. In negative sentence, guys, if your subject is I, we, you, they, plural, you have to put do plus not, which becomes of course don't, which is very famous, then verb first, then object. It means if you have to say कि मैं तो पार्क नहीं जाता हूँ, you would say I don't go to park. If you say कि यार तुम मुझसे बात नहीं करते हो, you don't talk to me. It's like that. But when your subject is either he, she, it, or any third person singular, third person singular means mother, father, brother, single person, then your structure is subject plus you have to put one helping verb does, then put not, which becomes doesn't, and then you can put verb first form. You're not supposed to put ses. It's very important structure, so pay your heed to it. So this is
the structure where so many people get confused. Like if you say मेरी माँ बाजार नहीं जाती है, then you would have to say my mother doesn't go to market. If you say my mother doesn't goes to market, it is considered to be wrong. So make sure when you say doesn't, you are not supposed to put either s or es with the verb. I think you're getting this point? Yes, sir. Yes, sir. Yeah? Yes, sir. Fine. Yes, sir. Yes, sir, we are getting. Fine. So now we have to actually start switching practice. Switching practice means sometimes don't, sometimes does not. ठीक है, तो ये डोंट डजंट एकदम जुबान पे होना चाहिए. अभी बाकी बच्चों को बाद में चेक करूंगा. तो ये स्विचिंग प्रैक्टिस आपको करनी है ऑफ डोंट एंड डजंट is required to be fluent. Now guys, now coming to our main point, which is interrogative sentence. ये स्विचिंग का सही हिंदी मीनिंग क्या है? स्विचिंग का हिंदी मतलब है एक से दूसरे पे स्थानांतरित होना. से दूसरे से स्थान मतलब टैकिंग में. स्विचिंग का मतलब है कि एक पॉइंट से जंप करके दूसरे पॉइंट पे चले जाना. जंप, दैट इज कॉल्ड जंप स्विचिंग. हाँ जी, चले जाना. इट मींस ये जेरेंट बन गया. हाँ, वो जेरेंट ही है. तो ये अभ्यास आपको करना है कि तुरंत डोंट है और नैनो सेकंड में डजंट पे चले गए. इतना जुबान ओके होना चाहिए. ओके. चले गए. इंटेरोगेटिव. नाउ कमिंग टू इंटेरोगेटिव, I would like to tell you that if there is a girl and she is here in the present time, this is her present time, and you are here, this is your present time. Now you don't have any idea about this girl, whether she goes to college or not. You don't know whether she makes tea or not. You don't know whether she loves someone or not. So you have no idea what she does, what she eats, where she lives, anything. No idea about it. Now you have n number of questions in your mind. So when you are going to ask a question and the answer of the question would be either yes or no, it means whatever the question is going to be asked by you has either yes or no answer. That question is called yes no question. यानी कि आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा. इस तरह के सवाल को हम क्या कहते हैं? yes no question कहते हैं. हम जब भी पूछेंगे तो उसका जवाब या तो हाँ में आएगा या ना में. तो yes no question पूछने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है. लेट मी राइट समथिंग दैट जब भी आप यस नो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी होगी. हेल्पिंग वर्ब से करनी होगी. As per the situation, as per the tense. जैसा टेंस होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब. इस लड़की से अगर सवाल मैंने पूछा कि क्या आप कॉलेज जाते हो, क्या आप कॉलेज जाते हो, तो ये मेरा yes no क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जवाब क्या आएगा? या तो हाँ या ना. तो मैं हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करूंगा. अब क्या है मेरे पास हेल्पिंग वर्ब? एज पर द टेंस मेरे पास दो ही हेल्पिंग वर्ब है. प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब्स
एक हमारे पास है डू और दूसरा है डज, तो दो हेल्पिंग वर्ब है। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ को डिनोट करते हैं? रूटीन एक्टिविटीज, यू नो, क्या क्या आपकी लाइफ में होता है। तो अब आपको इन्हीं से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो आपका स्ट्रक्चर होगा डू। आप शुरुआत में डू रखोगे, यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बताइए कैसे होगा? क्या आप कॉलेज जाते हो? Do you go to college? डू यू गो टू? She go to college. हम सामने वाले से पूछ रहे हैं तो डू यू गो टू कॉलेज। मेरी नज़रों में मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं सवाल इस लड़की से पूछ रहा हूँ, ये लड़की कौन हो गई? सेकंड पर्सन। अभी जो बातें हो रही है फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही हो रही है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। और फर्स्ट जो सवाल पूछ रहा है वो सेकंड के बारे में ही पूछ रहा है, वो बात ही कर रहा है कि हे सेकंड बताओ तुम कॉलेज जाती हो कि नहीं। कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। अब सेकंड जवाब कैसे देगा? इसके पास दो ऑप्शंस है। हाँ जी मैं कॉलेज जाती हूँ, यस आई गो टू कॉलेज। ना जी मैं कॉलेज नहीं जाती, नो आई डोंट गो टू कॉलेज। ये है करेक्ट अंग्रेजी। अगर उसके मुंह से ऐसे निकलता है कि यस आई एम, मान लो एम निकल गया, तो वहीं पर हम क्या मान लेंगे? रॉन्ग हो गया। अगर यहां निकला कि नो आई एम नॉट, तब भी हम क्या मानेंगे? रॉन्ग हो गया। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं कहता हूं, मैंने राजीव से सवाल पूछा कि राजीव क्या आप रोज दूध पीते हो, तो मैं आर यू ड्रिंक बोलूं कि डू यू ड्रिंक बोलूं? क्या सूट करेगा? Do you drink? तो मुझे अपना हेल्पिंग वर्ब खुद चुनना है। तो डेली रूटीन का हेल्पिंग वर्ब एकदम साफ साफ पता होना चाहिए कि डेली रूटीन मतलब दो ही हेल्पिंग वर्ब है, डू डज। तो अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि हे राजीव आर यू ड्रिंक मिल्क, और मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला है आर यू ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, और इन्होंने जवाब दिया यस 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 आई एम ड्रिंक, यस यस आई एम ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, और इन्होंने भी एकदम 1,00,000 के कॉन्फिडेंस से बोला है, तो क्या ये सही हो जाएगा? ये सही नहीं होगा। इसको बोलते हैं महागलत इंग्लिश। और ये जिसके सामने आप बोलो कि वो थोड़ी टोकेगा, उसको क्या लेना देना है आपसे? जब आप चले जाओगे तब आपकी वाट लगाएगी, अबे हट कुछ नहीं आता इसको। तो ऐसी गलत इंग्लिश नहीं बोलनी है, बचनी है, बचना है, खुद को बचाना है। तो डूडज का हमें ख्याल रखना है गाइस, हम आर नहीं लगा सकते। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि डूडज और आर में अंतर कुछ तो हो ही रहा होगा ना, यू नो? Yes, sir. जी। तो अगर मुझे बोलना भी क्या आप दूध पीते हो हर रात, तो मैं क्या बोलूँगा कि डू यू ड्रिंक Milk एवरी नाइट। every day. every night. अब इनका जवाब सर क्या यहाँ होगा? पर ऐड नहीं लगा, कहाँ पे ऐड? ऐड नहीं लगाएंगे एवरी नाइट, ऐड Hello? एवरी नाइट। ना ना एवरी लग गया ना, उस तो नहीं लगाएंगे। यस मैं दूध पीता हूँ तो यस आई ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट। यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ शॉर्ट में अगर आंसर देना है शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में खाली इंसान कितना बोलता है? यस आई डू। यहाँ भी Yes, I do. शॉर्ट में यस आई ड्रिंक, इतना भी रुक सकता है, वो शॉर्टकट। दिस इज शॉर्ट आंसर, स्मॉल आंसर, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट रिप्लाई आप दे सकते हो। आपने बोला ना जी मैं तो नहीं पीता दूध, तो आपने बोला नो आई डोंट ड्रिंक मिल्क। ये जो नो है ये आपका एक स्टाइल है बोलने का, क्योंकि आपसे सवाल जो पूछा गया है उसमें आपके मुंह से यस या नो निकलेगा ही निकलेगा, या तो निकलेगा नो 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 नो, कई बार नो बोल दोगे, नो 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 आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक। ये होता है स्टाइल। शॉर्ट में बोलना है तो आप ये से भी कह सकते हो कि नो आई डोंट। आप यहां भी रुक सकते हो, ये आपका शॉर्ट आंसर, शॉर्ट रिप्लाई। फाइन। अब जैसे ही यहां पर ये लड़की, यहां पर ये लड़का, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। अब तक फर्स्ट पर्सन पूछ रहा था सेकंड से और इसी के बारे में पूछ रहा था
कि तुम खाते हो कि नहीं, सोते हो कि नहीं, सब में डू यू चल रहा था, सब में चल रहा था डू यू। अब यही फर्स्ट पर्सन सेकंड से ही बात कर रहा है, बट अब बात करेगा किसी और के बारे में। अब किसी और के बारे में बात करेगा, तो अब ये कौन हो गया? ये थर्ड पर्सन हो गया। ऊपर से ये अकेला है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो अब ये फर्स्ट पर्सन पूछ रहा है कि अरे यार एक बताओ कि क्या रश्मि दूध पीती है? तो रश्मि के बारे में पूछ रहा है सेकंड पर्सन से। जवाब तो सेकंड पर्सन ही देगा, लेकिन बातें किसके बारे में हो रही हैं? रश्मि के बारे में, थर्ड पर्सन। तो भाई थर्ड पर्सन के बारे में जब दो लोग मिलकर आपस में बातें करें तो स्ट्रक्चर कुछ और होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब हमारा डज चालू हो जाएगा। डज यहाँ सब्जेक्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर बोलना है कि क्या रश्मि दूध पीती है रात को, तो क्या हो जाएगा? डज रश्मि रश्मि ड्रिंक मिल्क Does Rashmi drink milk? एवरी डे। अच्छा, अगर ये इसकी डज की जगह मुंह से इज निकल गया तो क्या सही होगा? नहीं होगा। इज रश्मि ड्रिंक? नो सर। दिस इज रॉन्ग। तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे सर डज की जगह इजी तो हुआ, बाकी तो सेम है। अरे बहुत कुछ हो गया। सो यू कैन नॉट डू दिस। ओके, इसका जवाब कैसे होगा? हाँ, वो दूध पीती है। यस शी। अब आपको ड्रिंक्स बोलना होगा। यस शी ड्रिंक्स मिल्क। नहीं पीती है? नो शी डजंट ड्रिंक मिल्क। जैसे आप हाँ बोलेंगे, यहां भी चेंज देख लीजिए। ड्रिंक को ड्रिंक्स करना है, ना बोल रहे हैं, डजंट ड्रिंक करना है। ये यस नो क्वेश्चन है। तो पहले जरा इस यस नो क्वेश्चन को चेक करेंगे, तब हम WH में घुसेंगे। आइए देखते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अब मुश्किल घड़ी आ रही है। इसको कहते हैं WH फैमिली। यस नो के बाद अगर डिटेल जानना हो, डिटेल जानना हो, तब WH वर्ड्स लगाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये WH बहुत सारे होते हैं, बट ये 3 तरह के होते हैं। 3 types of structures based on WH words। पहला है, इसके अंदर एक WH वर्ड होगा, इसके तुरंत बाद या तो डू लगा होगा या डज लगा होगा। तुरंत बाद, मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और ये WH होंगे कौन से? ये होंगे जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसके साथ, कितने बजे, कितनी बार, अक्सर कब, किसके लिए, क्या क्या क्या, इस तरह से होंगे। यानी कि जब भी ये शब्द आएंगे तो इनके बाद आपको ये डू या डज तो लगाना ही लगाना है। नहीं लगाएंगे तो गलती आपकी मानी जाएगी। जैसे अगर मैंने सवाल पूछा कि तुम पार्क क्यों जाते हो? अब क्यों यानी कि वाई आ गया। रूल कहता है कि भाई सबसे पहले आपने वाई लगाया, अब देखना है कि इसमें डू लगेगा कि डज लगेगा। क्या लगेगा? डू लगेगा। तो वाई डू यू गो टू पार्क? दिस इज करेक्ट इंग्लिश। अब वो जो लोग थोड़े
स्मार्ट गेम खेलते हैं, इनको लगता है नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, हम तो ऐसे बोलेंगे, ए व्हाई यू गो टू पार्क। अंग्रेज तो ऐसे ही बोलते हैं, अंग्रेज सब बोलते हैं, आपको नहीं पता अंग्रेज क्या नहीं बोलते, वो शुडंट कुडंट सब बोलते हैं, जाके सबटाइटल्स चेक कर लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर ये डू नहीं लगाया, आपने व्हाई यू गो टू पार्क बोला, आपने बोला ठीक तो है, बंदा समझ गया तुम पार्क क्यों जाते हो। अच्छा जी, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप मुझे बता देना कि उसका मतलब क्या है। इसका मतलब तो समझ गए ना, अगर कोई डू हटा भी दिया तो व्हाई यू गो टू पार्क का जनरली मतलब क्या समझ में आ रहा होगा, तुम पार्क क्यों जाते हो? यही है ना, ठीक है। नो सर, ये नहीं हो सकता सर। अब वो जितने भी जो महान हस्ती है उन्हीं के लिए ये अब नहीं हो अगला सकता है, इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि हट ना यार, हमारे यार दोस्त तो इतना डूडस थोड़ी लगाएंगे यार, कूल बनो। अब इतना No, कूल sir. बन जाते हैं कि वो फिर गलत ही बोलते हाँ हैं। गलत बोलते। तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, आप मुझे बता देना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने 4 अलग अलग सेंटेंस लिखे, मेरे मन में 4 भावनाएं हैं। क्या आप बता सकते हैं चारों क्या है? दिल पे हाथ रख के बताइए, नहीं बता सकते ना, चारों तो एक ही जैसा है। Yes. जबकि मैंने अपने तरफ से 4 सेंटेंस बोले हैं, मेरे मन में 4 फीलिंग है, लेकिन मेरे मुंह से सब क्या निकल सर, रहा है, सर वायु। कोई नहीं बता सकता सर। तो कोई नहीं बता सकता, इसका क्या मतलब है? सर कोई नहीं बता सकता। अब मैं कुछ लिखूंगा और तुरंत आपके समझ में मतलब आने लगेगा, ध्यान दीजिएगा। डू लगा दिया, मतलब अपने आप आ जाएगा। यस डिड लगा दिया, अपने आप मतलब आ जाएगा। विल लगा दिया, मतलब आ रहा है। यस Yes. शुड लगा दिया, अब देखिए, अब तुरंत समझ में आएगा। क्यों समझ में आ रहा है? क्या देख करके आ रहा है? ये डू, ये डिड, Time विल, word. ये शुड। तो अगर आप ये नहीं लगाओगे तो कोई कितना बड़ा भी एकदम अंदर से वो हो, अंतर्यामी हो, वो भी नहीं समझ पाएगा। मुझे बोलना है यार तुम मार्केट क्यों गए थे, अब मैं बोले हे व्हाई यू गो टू मार्केट, नहीं होगा। तुम मार्केट क्यों जाओगे, हे Why व्हाई did you go to- व्हाई यू गो टू मार्केट, ये हमें लगाना ही पड़ेगा। तुम्हें मार्केट क्यों जाना चाहिए, तो शुड लगाना पड़ेगा ना, बहुत जरूरी है, तो आप भूल नहीं सकते। लोग भाई यू हैव रिटन भाई यू गो टू पार्क इन करेक्ट, यू हैव रिटन ऊपर हाँ रॉन्ग, दिस इज Why? रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ऑफ यू हैव रॉन्ग कर दिस देंगे। इज रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग, एकदम गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे साबित होता है कि हमें ये लगाना है। अब आप कहोगे सर हम तो बिना लगाए बोलते, लोग समझ जाते। तो लोग तो भाई अगर सिर्फ इशारा में आपको प्यास लगाए, सिर्फ अंगूठा ऐसे दिखा दोगे ना सर, तो भी समझ जाएगा वाटर मांग रहा है। तो समझने को तो इंसान बहुत कुछ समझ जाएगा। आई नो बोलते हैं सर यस यस। अंग्रेज के सामने। तो अगर आप सीख रहे हो तो करेक्ट सीखो। अब एक और मुश्किल हालात, ये तो समझ गया। जैसे मैंने पूछा भाई तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? वेयर Where do you live? यानी कि हमें डू चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चाहिए। यस ओके, तुम कितने बजे उठते हो? एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप या वेक अप जो भी लगाते हो, मतलब डू पे ध्यान देते रहो, ये लग रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि यार तुम्हारी मम्मी कितने बजे उठती है, तुम्हारी मदर कितने बजे उठती है, तो क्या हो जाएगा? At what time टाइम At what time does your mother get up? get up? अब आप में से कोई ऐसे भी स्मार्ट गेम खेलता है कि सर डज छोड़ देते हैं, एट व्हाट टाइम योर मदर, और यहाँ गेट्स अप कर देते हैं ना सर, आ तो गया सर एकदम, देखो डज इट तो हटाया है। देखिए, अगर आप ये वाला गेम खेलते हो तो मैं आपको यहाँ पर लिख दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस का कोई और मतलब निकलता है, कोई और काम चलाओ सरकार, मतलब निकलता है। काम चलाओ सरकार। हाँ, काम चलाओ सरकार है, लेकिन इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। मैं वो मतलब अभी समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा।
अगर WH वर्ड से पहले कुछ सेंटेंसेस आ जाए जैसे आई डोंट नो, आई नो, डू यू नो, टेल मी, डोंट टेल मी, could you please tell me, can you tell me, do you have any idea, Yes. I don't have any idea, etc. तब WH वर्ड एक कंजंक्शन का काम करता है और इसके बाद डू डज नहीं लगाया जाता है, कंजंक्शन कैसे? इसके बाद या तो पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस लगाया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अभी क्या है इतना बड़ा मैंने क्या लिख दिया, इसको पहले तो इसको हाईलाइट करें, इसको समझते हैं। अब मैंने कहा कि यार तुम्हारे पापा कहाँ सोते हैं, पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तुम्हारे पापा कहाँ सोते हैं, इसकी जो प्योर इंग्लिश होगी वेयर डज योर फादर स्लीप। यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, आप इसको नकार तो नहीं सकते, यही सत्य है, यू नो, ऐसे बनेगा वेयर डज योर फादर स्लीप। अब मैंने कहा कि ये WH वर्ड है, अगर इससे पहले मैं कोई सेंटेंस लिख दूं, और सेंटेंस कौन कौन से थे, लिस्ट क्या क्या थी, ये थी, देख रहे हो, I don't know. इतने सारे, ये वो लिस्ट है। इसको थोड़ा और अलग कलर करते, कलर सही नहीं आ रहा है, आप सही है सर। ऐसे सही है, दिख Yes, जाएगा। sir. इसमें से हम कोई भी एक सेंटेंस उठाते, मान लो आई डोंट नो उठा लिया, तो आई डोंट नो का मतलब है कि मुझे नहीं पता मेरे पापा कहाँ सोते हैं। मुझे ये बोलना है कि मुझे नहीं पता मेरे पापा कहाँ सोते हैं। अब यानी कि मुझे नहीं पता है कि इंग्लिश होगी आई डोंट नो, आई डोंट नो। अच्छा, अब है कहाँ मतलब वेयर। अब देखो ये रहा WH वर्ड, वेयर माय फादर, ये रहा WH वर्ड, और ये हमने एक सेंटेंस लगा दिया, तो अब ये जो वेयर है ना, अब ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब ये एक सेंटेंस और आने वाले दूसरे सेंटेंस के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, नो, जोड़ेगा। यस सर। तो अब आई डोंट नो वेयर, तो इस वेयर के बाद अब डू डज नहीं चलेगा, अब सीधा सब्जेक्ट मेरे पापा सोते हैं, माई फादर स्लीप्स। माय फादर स्लीप। पॉजिटिव या नेगेटिव मैंने कहा था, तो पॉजिटिव है। आई डोंट नो वेयर माई फादर स्लीप, कि मुझे नहीं पता, इस वेयर को समझो जहां मेरे पापा सोते हैं। तो ऐसे बनेगा। अब ये गलत कब होगा कि आई डोंट नो वेयर, और आपने कहा सर ने बोला था डज जरूर लगाना, तो वेयर डज माई फादर स्लीप, अब ये गलत जरूर हो जाएगा। अब बहुतों को एक हफ्ता लग जाएगा इस चीज को समझने में, कह के क्या चला गया, क्या कह रहा है ये, कभी कहता है डज लगाओ, कभी कह रहा मत लगाओ। अब समझिए राजीव बाबू। हाँ सर, समझ में आ रहा था। आ रहा है। हाँ सर, मैंने ही पूछा था पहले आपसे। यस यस यस। सर एक मेरे मन में एक डाउट है सर जी। WH वाला वाट और डू डज वाला क्या, और वाट वाला क्या में क्या डिफरेंस है सर? आप, मुझे लग रहा है पूरा आप हिंदी से पढ़े हैं एकदम, ताते ती क्या। हाँ सर, हाँ सर। वही तकलीफ दे रहा है आपको।
वो देगा ही, तकलीफ तो देगा ही। ठीक है, पहले Yes, sir. इसको कंप्लीट करते हैं। सर? देखिए जी, बोलिए ना। ये आपने वो लिखाए थे ऊपर वेयर भाई हाउ मच, तो उसमें एक शब्द लिखा था व्हाट एल्स। हम्म, तो व्हाट एल्स के बारे में एक उदाहरण दीजिए ना सर, क्या कहते जी, हैं, जी। इसके बाद वी विल डिस्कस अदर। 100% अभी करते, जरा ये इस पे थोड़ा सा हाईलाइट और कर दो। हाँ तो कैसे, देखिए एक और है कि तुम्हारी मम्मी जैसे कि तुम्हारी मम्मी पार्क क्यों जाती है? तुम्हारी मदर पार्क क्यों जाती है? तो इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? Why does Why your does your mother Why does your mother Your mother go to go to park? go to the park? Goes to the park. ना ना ना, नहीं, डज नहीं, आ नहीं, गया, हाँ, डज आ गया, डज आ हाँ, गया, तो यहाँ स्ट्रक्चर, तो ये हमारा करेक्ट है। व्हाई डज योर मदर गो टू पार्क। अब मुझे बोलना है कि मैं नहीं जानता कि वो पार्क क्यों जाती है, कि वो पार्क क्यों जाती why does है। ये मेरा सेंटेंस। अब कैसे मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा? I don't know why I don't know why mother goes to the park. तो जितने भी लोग, अभी कुछ लोग होंगे जिनके समझ में नहीं आ रहा होगा, सोच रहे होंगे अच्छा सबके समझ में आ गया, मेरे ही समझ में नहीं आया। फिर जब क्लास खत्म होती है तो पूछते हैं भाई तू समझ गया, जरा मुझे समझा दे। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो लोग ध्यान दें। या फिर आप अपने अगल बगल फैमिली मेंबर पार्टनर से पूछने लगते हो कि समझा दे मुझे। तो मैं नहीं जानता कि वो पार्क क्यों जाती है। सबसे पहले मैं नहीं जानता कि इंग्लिश क्या होगी, आई डोंट नो, आई डोंट नो। I don't know अब इस पे WH लगाओ, क्यों लगा दो बस, वाई। why अब यहाँ के बाद डूडज नहीं लगाना है। अब क्या बचा, पार्क जाती है, ये बचा ना, वो पार्क जाती है, तो वो मतलब शी गोज टू, goes to park. आई डोंट नो व्हाई शी गोज टू पार्क। एकदम करेक्ट है, यही होना है। और कलर बदलते हैं। ये है। तो एक तो हम अभी कल इस पे काम करेंगे ही, प्लस इनको व्हाट एल्स थोड़ा समझा देता हूँ। और उन भाई साहब का सवाल है कि सर क्या वो हिंदी मीडियम वाला कोई सवाल है, तो उस पर भी चर्चा अभी करते हैं। रुकिए, देखिए व्हाट का तो मतलब आपका हो गया क्या। जैसे मैंने पूछा भाई तुम क्या खाते हो, तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा, व्हाट डू यू ईट, ऐसे बोलूँगा। हाँ सर। अब ये जो व्हाट में अगर कोई एल्स लगा देता है तो इसका मतलब होता है क्या क्या, मतलब क्या कुछ, आम भाषा में क्या कुछ। जैसे कभी ऐसा सुना है, कोई खाना खा रहा होता, हम पूछते हैं कि एनीथिंग एल्स, कभी सुना होगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो एनीथिंग एल्स का मतलब है कि और कुछ और चाहिए क्या। कुछ इट मीन्स कि जो एल्स है, ये एल्स हमेशा एक्स्ट्रा को दिखाता है, एक्स्ट्रा, Yes, sir. कुछ और जोड़ता है उसमें। कुछ एक्स्ट्रा चीज को जोड़ता है। तो मैं इस व्हाट में अगर एल्स लगा दूं तो इसका मतलब है कि कुछ और एक्स्ट्रा खरीदा क्या, कुछ एक्स्ट्रा की बात हम कर रहे हैं, यानी कि हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं कि व्हाट एल्स। तो यहाँ पर वो हिंदी में क्या क्या, अंग्रेजों को थोड़ी पता कि क्या क्या होता है, 2 बार ये लोग बोलते होंगे, अंग्रेजों को व्हाट एल्स पता है। तो अगर हम किसी को बोले कि अच्छा तुम मार्केट जाते हो तो क्या क्या खरीदते हो, व्हाट एल्स मतलब कि उन सारे आइटमों के नाम बताओ, व्हाट एल्स डू यू परचेज, Do you purchase? परचेज फ्रॉम मार्केट। Sir. कुछ लोग कहेंगे सर हम व्हाट ऑल नहीं लगाते, ऐसा भी हो सकता है। Yes, sir. All yes. हाँ, ऑल पे लगा सकते कि व्हाट ऑल डू यू Yes, परचेज। sir. पर व्हाट एल्स ज्यादा बोला जाता है और अच्छे लेवल बोला जाता है फ्रॉम मार्केट। सर WH वर्ड पर जितने प्रकार के वर्ड्स आते हैं उस पर एक कभी कोई सेशन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल करेंगे। अब जो इनका जो सवाल है थोड़ा एकदम हिंदी मीडियम, जो कि वो बिल्कुल मैं उसको टच नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अंग्रेजों की तरह पढ़ाता हूँ, सिचुएशनल इंग्लिश। नहीं सर जी, we are born in Indian, so we called as a Indian person. As and when you talk,
think as a English person. Because of we are born Indians, so then how can I think over that? जी, इस चक्कर में लोग अभी भी ताते रहा रहे कर रहे हैं सर। और चुका चुकी में ही जिंदगी बिता दी, चुका चुकी भाई। केवल सर हमने भी चुका चुकी ताती थी पढ़ा था, और यही चूंकि अपन सब इंडियंस लोग जितने भी मैक्सिमम है सब हिंदी ताती थी जानते हैं, कोई इंग्लिश से तो बनाई हुआ ही नहीं है। इसीलिए तो बुरा हाल है, जितने भी चुका चुकी वाले हैं उनका बुरा हाल है। हमको तो ऑल से चुका चुकी वाले हम क्या कहें। और जो चुका चुकी पे वीडियो बनाता है उसके मिलियन में सब्सक्राइबर्स भी हैं, क्योंकि लोग Yes, sir. Yes, sir. उधर ही है ना। I know, sir. हम जैसे सिचुएशनल वाले को तो बस आप ही में से कुछ लोग कदरदान है, बाकी तो ऐसे ही है। आइए सर मैंने तो आज तक नहीं देखा। कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। जैसे किसी ने बोला कि भाई क्या तुम बाजार जाते हो, आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि अगर शुरू में क्या आ जाए, यही पढ़ा होगा ना कि शुरू में अगर क्या आ जाए, ऐसा आपके टीचरों ने पढ़ाया होगा। मैं वो अलग से नोट लिख देता हूँ कि अगर शुरू में क्या आ जाए तब वो व्हाट नहीं होता है, व्हाट नहीं होता है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। कुछ ऐसा सुना होगा, जैसे कि क्या तुम बाजार जाते हो, तो इस क्या को व्हाट नहीं समझेंगे, इसको हम डू समझेंगे कि डू यू। ऑडिटर ऑफ कीजिए ना, डू यू गो टू मार्केट। अच्छा क्यों, क्योंकि वो तुम के साथ लगा है तो वो डू हो गया, क्योंकि डू किस किस के साथ लगता है, आई वी यू दे प्लूरल, यानी कि जब बीच में क्या आएगा तब क्या कहते हैं व्हाट लगेगा, शुरू में स्टार्टिंग में क्या आता है तब उसमें व्हाट नहीं लगता है, ये शुद्ध हिंदी वालों को बताना चाहिए। हाँ, लेकिन इसकी अभी गलतफहमी भी मैं दूर करूंगा, मैं इसीलिए अभी राजीव का ब्रेन वॉश कर रहा हूँ जरा। तो आई वी यू दे प्लूरल, इन ये रहेगा तो इनके साथ डू ही सूट करता है, ये तो सब ये भी पता है। तो अगर आ जाए कि भाई क्या मैं सोता हूँ, क्या मैं सोता हूँ, तो शुरू में क्या आ गया और मैं है तो फिर डू आएगा, डू आई स्लीप, यही था ना, यही था। अच्छा अगर थर्ड पर्सन आ जाए, डज ही स्लीप, थर्ड पर्सन आ जाए, क्या वो सोता है, क्या वो सोता है, तो हो गया डज ही स्लीप। अब गलतफहमी कैसे दूर होती है कि उन बच्चों ने रट लिया कि अच्छा शुरू में क्या आएगा तो भाई डू या डज लगेगा, और बीच में आएगा तो व्हाट लगेगा, यही था ना। है ना। एक और लिख देता हूं कि अगर बीच में क्या आ जाए तो व्हाट लगेगा, व्हाट लगेगा। ये सही पकड़े। जैसे कि भाई तुम क्या खाते हो, और आज भी जो गांव घर में टीचर यही पढ़ा रहे हैं, तुम क्या खाते हो, तो क्या आ गया तो व्हाट लगा दो, व्हाट डू यू ईट। अब गलतफहमी कैसे दूर होती है, देखिए गलत फहमी। हिंदी में कई लोग ऐसे बोलते हैं, तुम क्या स्कूल जाते हो, अब तो फंस गया बंदा कि तुम क्या स्कूल जाते हो, अरे बीच में क्या आ गया, बीच में क्या आ गया। अब उस हिसाब से तो ऐसे बोलेगा बीच में व्हाट डू यू गो टू स्कूल। अब जरा बताइए भाई साहब, सही है, सही है क्या अंग्रेजी, व्हाट डू यू गो टू स्कूल? नहीं सर, गलत है ना? मेरे ख्याल से सर जिसका आंसर यस या नो में आता है जी उसमें डू डज लगता है। तो अंग्रेजों का जो सिस्टम है कि भैया आप बीच में क्या बोलो कि आप लास्ट में बोलो। अभी मैं आपको लास्ट में भी क्या दिखा देता हूँ कि तुम स्कूल जाते हो क्या, लास्ट में है ना, जाते हो क्या। अब तो बंदा पागल कह रहे सर जी आपने ये तो नहीं बताया कि अगर पूंछ में आ जाए क्या तब क्या करेंगे, ये तो नहीं बताया। सर यहाँ हिंदी भी होती है। तो ये जो स्टुपिडिटी है इससे बचना है राजीव, ये लकीर का फकीर नहीं बनना है। हमें बस देखना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें देखो कि क्या ये सुनो वाली फीलिंग आ रही है। बंदा जो पूछ रहा है तुम क्या स्कूल जाते हो, मतलब हाँ या ना, यही जानना चाह रहा होगा ना। हाँ सर, तो, समझ गया सर। हाँ, तो क्या कोई वो बीच में डाले या वो एकदम डाले ही नहीं। कई बार तो चेहरे से होता है तुम स्कूल जाते हो, yes, वो क्या भी नहीं डालेगा, तुम स्कूल जाते हो, यू नो, बंदा आपको ऐसे बोल देगा पंजाबी ऐसी स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, चेहरे से ही क्वेश्चन मार्क इतना सारा डाल देगा, है ना। और आप कहोगे अच्छा क्या तो आया नहीं, मतलब खाली नॉर्मल बनाओ, यू गो टू स्कूल। मिस्टर नागाइच आया सर। आप नई टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ।
कोई नहीं guys, मुझे लेट हो रहा है। तो जब मैं YouTube पे आया तो ये स्टुपिडिटी ड्रामा में देख रहा था कि क्या है यार, गागे घी चुका चुकी और लोग लाखों में लोग फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए मुझे आना हाँ सर, वो बहुत फंसाने वाला है सर, बहुत फंसाने एक्चुअली है क्या कोई नहीं guys। सर